غریب ہو تو غریبی کا سر پہ تاج نہ ہو. کتنے لوگ سنیں گے؟ آگے سے لے کے پیچھے تک ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا غریب نواز. غریب ہو تو غریبی کا سر پہ تاج نہ ہو، بشر کی شکل میں شیطان کا مجاز نہ ہو. میرے کریم تیرے حبیب کو بے بس کہنے والے کو مرض وہ دے دے جس کا کوئی علاج نہ ہو. ماشاءاللہ بیدار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بھی ہمارے سادات بھائی پڑھ رہے تھے، آپ حضرات سماعت کر رہے تھے بڑی خاموشی کے ساتھ میں. اسی عظیم شخصیت کی آمد ہے ماشاءاللہ. ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت علم بردار حق و صداقت حضرت علامہ مفتی محمد عبد الرحمن صاحب قبلہ حشمتی ابراہیم شریف سے تشریف رکھتے ہیں. اور کتنے لوگ بیدار ہیں کہ سننا چاہیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. آئیے ان سے پہلے ماشاءاللہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں لے کر پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے. بیدار ہیں آپ حضرات؟ بولیے. آواز نہیں آ رہی ہے. ارے بیدار ہیں؟ ابھی بھی نہیں آئے پیچھے والے کی. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں. ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کا وہ ایمان بنے بیٹھے ہیں. اب سب نہیں بولیں گے، جو غریب نواز کے عاشق ہیں صرف وہی بولیں گے. ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کا وہ ایمان بنے بیٹھے ہیں. ہند والوں میرے خواجہ کی حکومت تو دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں. 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں. آئیے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، عرس غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شیر سنت. دشمنان نبی کو گھٹا دیجئے، پھر بریلی کا تیور دکھا دیجئے. جو بھی کرے ولیوں کی گستاخیاں کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے. محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساتھی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ محبتانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ. بہت ہی لائق مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آج آپ کو اس
دینی ایمانی محفل میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا، اور خوش بختی یہ بھی ہے کہ آج اس محفل میں اعلیٰ حضرت کا شعر سبحان اللہ سبحان اللہ، سے دنیا مظہر اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے گھر کا ایک شہزادہ نبیر مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج آپ کو ان کے چہرے کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور ان کی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی، تو یہ بھی آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، چند باتیں ہم پیش کریں گے۔ سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے اور سرکار غریب نواز کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ یہ جشن کیا ہے؟ جشن غریب نواز ہی ہے نا۔ تو سرکار غریب نواز کی محفل، ان کا مہینہ، کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بزرگوں ہی کے اور اس مضمون سے ریلیٹڈ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا دھیان سے سنیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھا دیجئے جہاں جو بیٹھے، یہ ہمارے مجاہد کہہ دیجئے، دین و سنیت کے مجاہد، اللہ جزائے خیر، دین و سنیت کے مجاہد جناب آزاد بھائی، اور ان کا یہ گرو، باقی لوگ پہچانتا تو بہت سارے لوگوں کو ہوں میں، مگر نام سے واقف نہیں ہوں سب کے، تو یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھی، ان کے معین و مددگار اور لوگ جو بھی ہیں، انہوں نے دعوت دی اور بہت ضد کیا، بہت ضد بولے تو بہت ضد، اتنا لمبا پروگرام میں نہیں کرتا، اتنا دور نہیں آتا، یہ جو تاریخ لیتے ہیں وہ جانتے ہیں، تھوڑا سا مزاج نہیں ہے دور چلنے کا جانے کا، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا رہنے دو، حضرت جا رہے ہیں، کھنڈوا میں مقررین ہے، وہاں سے لے لیجئے، ایک مقرر میں نے سیٹ بھی کر دیا تھا کہ یہ ان کو آپ لے لیجئے، تو یہ بولے کہ نہیں سیٹ مت کیجئے، سیٹ کرنا ہے ہم لوگ دن بھر سیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، آپ ہی کو آنا ہے۔ تو لاسٹ ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ یار وہ آدمی ہی کیا جو کسی کے دل کا درد نہ سمجھے، دل کے جذبات کو نہ سمجھے، پھر مجبور ہو کے کہنا پڑا کہ ہاں آ رہے ہیں۔ تو میں پہنچا، اب یہ ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لے اور کچھ باتیں آپ سن لیں، بہت دور سے چل کے آئے ہیں، بڑے مشکل سے چلتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، ہاں تھوڑا سا ماحول بنائیے تاکہ کچھ کہہ جائیں، چونکہ ماحول آپ ہی بناؤ گے۔ وہ سرکار غریب نواز کے یہاں تو سارے زمانے سے لوگ آتے ہیں نا، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جن کو توفیق ہوگی وہ جائیں گے، اور بہت سارے لوگ تیاری کر کے بھی نہیں جا پاتے،
तो मैटर वही है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और जरा सा आप लोग चलना फिरना बंद करें, हाँ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। बतवाए हुए भैया, हाँ, तो बतवाए हुए तो खड़ा हो जाओ वहीं को, हाँ। कोई भटक के रह गया राह में, जरा सुनिए क्या कहते हैं। कोई भटक के रह गया राह में, कोई मचल के दर से लिपट गया। कोई भटक के रह गया राह में, कोई मचल के दर से लिपट गया। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है, ये किसी गरीब की बात है। जरा सा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। कोई भटक के रह गया राह में, कोई मचल के दर से लिपट गया। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कहीं करीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कहीं करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे गरीब नवाज है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, सुभान अल्लाह। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। एक किताब लिखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम किताब का तफसीर नईमी, क्या नाम है? तफसीर नईमी। उसमें लिखा हुआ है, एक आदमी बीमार हुआ। किताब नोट कर लो, चाहे इधर चाहे लिख लो। क्या नाम किताब का? तफसीर नईमी। उसमें लिखा हुआ है, अगर आपको ना मिले दम रहता है, मिलो हम दें, अभी दे। अभी उधर कहाँ जाएंगे, इतना दूर कहाँ? आपको मैं तो मेहनत किया ही हूँ, तुम्हें काहे परेशान करेंगे हम? इतना दूर से आया हूँ, मैं तो मेहनत किया ही हूँ, आपको काहे परेशान? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुंह खोल और जलवा देख। ठीक है। तफसीर नईमी में लिखा है, शाह तवक्कुल साईं एक बुजुर्ग है, उनके दरवाजे पे बीमार हुआ। और बीमार जब ज्यादा हो गया, ये हुआ कि अब कहीं कुछ नहीं, अब जो है जाना ही जाना है। उसको ऐसा लगा तो वो लड़खड़ाता हुआ आया, उनके दरवाजे पे गिर पड़ा दरवाजे पे, और वहीं पड़ा। और जब बीमारी थी, तकलीफ हुई, तो तकलीफ में कहता हाय अम्मा, हाय अम्मा, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, ऐसे बोलता। बीमारी थी, तकलीफ हुई तो बोलता अरे माँ, अरे माँ, हाय माँ, हाय माँ। वो बुजुर्ग को जोश आया, बोले चुप, बोले ये मत बोल, ये बोल, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो कह रहा था अरे माँ, अरे माँ। बुजुर्ग ने कहा चुप, ये ना बोल, मौत का वक्त है, ये बोल, ए अल्लाह, हाय अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ये बोल। ये बोलना शुरू किया, बदल गया। अब कहने लगा ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। 2-4 बार कहा, इतने में रूह निकल गई, दम टूट गया, जान निकल गई, आंखें बंद हुई। एक आदमी बैठा हुआ था वहीं पास में, बोले हजरत, वो कह रहा था हाय अम्मा, हाय अम्मा, अरे अम्मा, अरे मेरी माँ, आपने बदलवा दिया। आप कह रहे हैं कि कहो या अल्लाह, या अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। वो बदल गया, वो बदल गया। और ये कहते कहते जान निकली। बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले मैटर ये है कि मरते वक्त गिरा भी तो रोड पे नहीं, मेरे दरवाजे पे गिरा है। जरा हाथ उठाना,
इनके दरवाजे पे गिरना भी कोई आसान नहीं है। गिरता वही है जिसे तौफीक मिलती है, ये उसमें लिखा हुआ है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि जब ठोकरें खाके गिरा मैं तो उनके कदमों पर गिरा। काम दीवाना भी करता है कभी होशियार का, काम दीवाना भी करता है कभी होशियार का। तो कहने का मतलब ये है कि गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। खाजगी मिल जाएगी ख्वाजा का तू दम भर के देख। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। दुनिया में औलियाए किराम देखो बहुत आए, बहुत सारे लोग आए, सिलसिला चला, नबियों का सिलसिला चला। सरकार जब आए तो नबूवत का दरवाजा सरकार पर बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आने वाला, और जब अब कोई नबी नहीं आएगा तो सवाल ये हुआ कि भाई दीन का काम कैसे चलेगा। या तो ये दावा किया जाए कि अब लोग नहीं बिगड़ेंगे, अब लोग गलत नहीं होंगे, अब शराब नहीं पिएंगे, अब बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, अब गुनाह नहीं करेंगे। ये दावा किया जाए कि अब नहीं बिगड़ेंगे तो ठीक है, अब रहबर का भी काम खत्म है। लेकिन अगर मुस्तफा के बाद लोग बिगड़ेंगे, जमाना जो आएगा गुनाह करेंगे, दीन छोड़ेंगे, तब फिर रहबर की जरूरत है, हिदायत करने वाले की जरूरत है। तो सवाल हुआ, जब नबूवत का दरवाजा बंद हुआ तो रहबरी कौन करेगा, हिदायत कौन करेगा? तो जवाब आया, अब ये जिम्मेदारी औलियाए किराम निभाएंगे, उलमाए हक निभाएंगे। तो ये सिलसिला वलियों का चला, बहुत सारे वली दुनिया में आए, गौसे पाक आए, दीगर अंबिया औलियाए किराम आए। यही हिंदुस्तान में देख लो, हिंदुस्तान में कम औलिया आए हैं। कहीं वारिस देवा मौजूद है, कहीं शाह मीना लखनवी मौजूद है, कहीं साबिर कलियरी कलियर में मौजूद है, कहीं आला हजरत मौजूद है, कहीं सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ में मौजूद है। हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे औलिया आए हैं, मगर याद रखिएगा वली तो हिंदुस्तान में बहुत है, मगर सब रियाया है, सब परजा है, राजा एक आया है, उसे मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहा जाता है। सब परजा है, राजा सिर्फ एक है, वो है मोइनुद्दीन अजमेरी। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा दे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह ताला हमारी दुआ है आप इनसे निस्बत रखें, बुजुर्गों से निस्बत रखें, ठीक है? ये निस्बत आपको बहुत फायदा देगी। अभी जब ऐसी तकरीर करो तो लोग कह देते हैं, अरे यार आजकल तो लोग बिगड़े हुए हैं, फिर लोग ये लोग वो लोग। तो हम कहते बिगड़े हुओं की बात नहीं करता मैं, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं। इन बुजुर्गों से वाबस्ता रहिए, ये चीजें फायदा देगी आपको। मिशकातुल मसाबीह में हदीस पाक मौजूद है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर चलते रहते और तलाश करते कि अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल कहाँ हो रही है। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये इतना लंबा चौड़ा मजमा आजाद भाई ने ये एहतमाम किया, इनकी कमेटी ने किया, आपके इंदौर के जो भी मोहल्ले वाले का कौन सा मोहल्ला, इन लोगों ने इंतजाम किया। इतना लंबा चौड़ा मजमा, ये उलमा मौजूद हैं, ये महफिल काहे की है? अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल है कि नहीं है? बोलो कसके, अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल है कि नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र, अल्लाह वालों का जिक्र, जिक्र इलाही है, जिक्र इलाही है। तो जब ये अल्लाह के जिक्र की महफिल है, हदीस पाक बुखारी में, मुस्लिम में, मिशकात में मौजूद है,
फरिश्ते चलते रहते और जिक्र की महफिल तलाश करते, कहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। और जब कोई फरिश्ता देखता है कि यहाँ लोग बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं, जिक्र हो रहा है, तब वो फरिश्ता आवाज देता है, हलुमु हा एला हाजतकुम, ए फरिश्तों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ तुम्हारे मकसद, यहाँ तुम्हारा मकसद हल हो रहा है, ये तुम्हारे मकसद की महफिल है, इधर आ जाओ। सारे फरिश्ते आ जाते हैं वहां जहां महफिल हो रही होती है। जैसे आज महफिल हो रही है, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। जब महफिल खत्म हो जाती है तब फरिश्ते वहां से जाते हैं और जब अल्लाह के हुजूर में पहुंचते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सवाल करता है, ए फरिश्तों ये बताना जरा कहां से आए हो, मेरी कोई महफिल मिली नहीं मिली? ए मौला तेरे जिक्र की महफिल से आए हैं। कहा क्या देख करके आए हो, क्या देख करके आए हो? तो वो कहते हैं, ए मौला वो तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र कर रहे थे, तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र कर रहे थे। तब अल्लाह फरमाता है, ये बताओ वो मेरा जिक्र कर रहे थे? कहा हाँ मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे। कहा उन्होंने कभी मुझे देखा है? फरिश्ते कहते नहीं, उन्होंने कभी तुझे नहीं देखा है। तो कहा कभी नहीं देखा है तब भी मेरा जिक्र कर रहे थे? कहा कर रहे थे। कहा अगर मुझे देख ले तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह अगर तुझे देख ले तो तेरा जिक्र और करेंगे और जिक्र करेंगे। अल्लाह फरमाता है, ये बताओ, अच्छा ये बताना जिक्र कि क्या जिक्र कर रहे थे, क्या कह रहे थे मेरे बारे में? फरिश्ता कहता है, युहम्मिदूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनका व युसब्बिहूनका। तेरी तस्बीह करते थे, तेरी तमजीद करते थे, तेरी हम्द बयान करते थे। ए मौला कहते थे अल्लाह सुबहानहू सुबहानहू, ये सब जिक्र करते थे। अल्लाह ने फरमाया ये बता, जब बिना देखे ऐसा जिक्र करते थे तो अगर देख ले तो देख ले तो फरिश्ते बोले तब तो और जिक्र करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये बताओ वो चाहते क्या थे जिक्र से, क्या चाहते थे? तो फरिश्तों ने कहा मौला वो चाहे तेरा जिक्र करके, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ जन्नत चाह रहे थे और भागते किससे थे, पनाह किससे मांग रहे थे? तो कहा जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, उशहिदुकुम कद गफरतु लहुम। ए फरिश्तों तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ, जितने महफिल में थे सबको मैंने जन्नत का परवाना दे दिया। जरा हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह, सबको बख्श दिया है। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हदीसे पाक मिशकात में मौजूद है, आप देखोगे। और अगर आपके पास मिशकात हो तो हमें आप बता दीजिएगा, हम आपको दिखा देंगे। मिशकातुल मसाबी हदीस की किताब सफा नंबर 197, ठीक 197 197, ये मिशकात का पेज है, वो पेज जो हदीस वाली हम बयान कर रहे हैं। ठीक अभी जो हमने बताया ये देखिए वो पेज है, इस यही मैं बोल रहा हूँ, ये वही 197 वाला पेज है। ये देखिए मिशकात का। फिर भी अगर आपको इत्मीनान ना हो तो हम मुजस्सम मौजूद हैं, हाजिर खिदमत है। किताब लाना आपका काम, दिखाना मेरा काम है। क्योंकि घर आपका है, मेरा नहीं है। ये घर आपका है, मेरा नहीं है, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। किताब आपको लानी होगी, दिखाना मेरा काम है। ये मिशकात का पेज है, यहीं से बोले, अल्लाह समझ दे आपको। और आगे जानते हो क्या लिखा है इसमें? बताऊं? जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले हाथ उठा के बोल दो। देखो क्या लिखा है, जानते हो इसमें? जब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन्हें बख्श दिया, फयकूल फउशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, यही तो अभी मैंने पढ़ा कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन सबको बख्श दिया, पूरी महफिल वालों को। अब जब अल्लाह ऐसा फरमाएगा तो फरिश्ता बोलेगा, यकूलु मलकुम मिनल मलाइका फीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम। जरा सा मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम, एक फरिश्ता बोलेगा, ए अल्लाह
तू कह रहा है मैंने सबको बख्श दिया, मगर उनमें एक आदमी ऐसा है जो उनमें से नहीं है। जा लिहाजतिन, वो महफिल में तेरा जिक्र करने नहीं, अपने किसी काम से आया था। महफिल में तेरा जिक्र करने नहीं, अपने किसी काम से आया था। देखा तो रुक गया, वो उनमें से नहीं है। अल्लाह फरमाता है, हदीस में देखो ये मौजूद है, अल्लाह फरमाएगा ला यशका जलीसुहुम, सुन लो जो अल्लाह वालों के पास बैठे वो बदबख्त नहीं हो सकता है, वो भी नेकोकार होता है। सुभान अल्लाह, अलग नहीं किया जा सकता, सबको बख्श दिया गया। निस्बत का कमाल देख रहा है, अपने काम से आया है, अपने काम से आया है, मगर महफिल में बैठने की बुनियाद पर, वलियों से अच्छी जगह से निस्बत होने की बुनियाद पर उसे भी बख्श दिया गया। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए, ये मकाम है। तो आप ये किताब बारगाहे रिसालत में मकबूल है, ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 का है, ठीक। ये आपने देख लिया, इससे पता चला कि सबे सनाबिल शरीफ का मकाम क्या है। अब सबे सनाबिल शरीफ में लिखा क्या है, जरा सा देखो। आपकी मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो आप परहेजगार गर्दानते हो, रोजा रख ले तो परहेजगार कहते हो। ख्वाजा गरीब नवाज, जरा सा मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 साल हो गए, 70 साल तक रात में पैर फैला के सोया नहीं, आराम नहीं किए, पीठ लगा के नहीं सोए, और 70 साल तक सिवाय हाजते इंसानी के उनका वुजू कभी नहीं टूटा। जरा मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। देखोगे सबे सनाबिल शरीफ देखोगे आप, सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या है। इसी में है कहीं, जरा सा देखिए, निकाल के देखिए, सबे सनाबिल शरीफ, उसमें लिखा हुआ है 70 साल तक सरकार गरीब नवाज पैर फैला करके लेटे नहीं। 70 साल तक उनका वुजू हाजत इंसानी के अलावा नहीं टूटा, हरदम आंखें बंद किए रहते थे। और 70 साल तक नहीं सोए तो कर क्या रहे थे, कर क्या रहे थे? इबादत, रात में भी इबादत, दिन में भी इबादत, इबादत, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। 70 साल तक नहीं सोए और 70 साल तक हाजत इंसानी के अलावा उनका वुजू नहीं टूटा। अक्सर आंखें बंद रहती थी, अक्सर आंखें बंद रहती थी और अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाहू 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 अल्लाहू। आंखें बंद है, जब कभी तबीयत से, इत्तेफाक से आंखें खोल दिया, और जब आंखें खुली उस वक्त जो उनके सामने पड़ा वो वली बन जाता था, जिस पर नजर पड़ती वो वली बन जाता। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। ये देखो सबे सनाबिल, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर, सबे सनाबिल शरीफ का पेज है। अभी जो मैंने कहा ये देखो इधर लिखा है, जहां मेरी उंगली घूम रही है वही लिखा है। आप कहोगे खाली पेज, किताब मेरे पास है, आप बोलो तो। उसी किताब का तो निकाला हुआ है, किताबें नहीं होगी तो ये आएगा कहां से? किताब ही से तो आया है, किताब मेरे पास है, अब फिक्र मत करें। ये देखिए जहां अंगूठा घूम रहा है वही लिखा हुआ है। 70 साल तक नहीं सोए रात में, और 70 साल तक हाजत इंसानी के अलावा वुजू नहीं टूटा। नमाज के वक्त आंखें उमूमन बंद रखते, कभी जब आंखें खोलते शायद की नजर जिस पर पड़ जाती वो अल्लाह का वली बन जाता। ये देख लिखा है, ये देख लिखा है। समझ ले
सुभान अल्लाह। जरा सा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बेचैनी तो नहीं है आपको भाई, प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना, मुतमईन है ना, एकदम राइट। अच्छा ये देखो नीचे लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ख्वाजा साहब ने फरमाया ए अल्लाह जो शख्स मेरा मुरीद होगा, ख्वाजा ने फरमाया जो शख्स मेरा मुरीद होगा या मेरे मुरीद का मुरीद होगा, मेरा मुरीद होगा या मेरे फर्जंदों का मुरीद होगा, मैं जन्नत में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसे ले ना जाऊं। जरा सा मुस्कुराओ और बोलो सुभान अल्लाह। ये देख, अगर अपने बाप की बोली बोलूं तो ठुकरा दे, कोई औकात नहीं है मेरी। और अगर सबे सनाबिल की इबारत है और सबे सनाबिल को इमाम अहमद रजा मजबूत कर रहे हो तो फिर तुझे मानना ही होगा यही हक है, यही सच है। हजार सजदे जो काम न करेंगे, गरीब नवाज की नजर वो काम करेगी, यही सच्चाई, यही सच्चाई। ये है फतावा रज़विया और ये है सबे सनाबी। देख लिया ना, अल्लाह समझ दे और हमें सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में जिलाए। ठीक है, इतना आपने सुन लिया, ये सबे सनाबिल शरीफ भी हो गई। ठीक, अब इसको इधर रख देते हैं हम, बोलना का तू मेरी बात करा दे, इसको इधर रख दिया मैंने, ठीक है, रख दिया। अब आप देखो, खड़ा हो जाए, ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 है, पुरानी वाली। मेरे घर चले जा। ये फतावा रज़विया आला हजरत की किताब, जिल्द नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है कि शेरुल औलिया अल्लामा किरमानी की किताब मुस्तताब में ये लिखा है, यानी आला हजरत हवाला दे रहे हैं। ये आला हजरत सरकार हवाला दे रहे हैं फतावा रज़विया शरीफ का। ये लाइए, ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9, आला हजरत हवाला दे रहे हैं क्या कि अल्लामा किरमानी की किताब मुस्तताब शेरुल औलिया में ये लिखा है, आला हजरत कह रहे हैं। तो जब आला हजरत कहे कि फला किताब में ये लिखा है तो वो किताब अच्छी होगी कि नहीं होगी? बोलो, आला हजरत जब कहे कि फला किताब में ऐसा लिखा है, हवाला दें, और वो कहे किताबे मुस्तताब में ये लिखा है, किताबे मुस्तताब कहे तो फिर किताब की शान क्या होगी? तो आला हजरत ने इधर हवाला दिया शेरुल औलिया का। इससे मैंने शेरुल औलिया की मजबूती साबित कर दी कि शेरुल औलिया कितनी मजबूत किताब है। अब जब साबित हो गई तो अब शेरुल औलिया में देखो क्या लिखा है। ये तो सब सबे सनाबिल का पेज है, शेरुल औलिया दीजिए हमको। उसमें लिखा हुआ है, जरा सा देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी फरमाते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, चलो पहले इसको बता दूं फिर बाद में दूसरा बताएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, मैंने निशान लगा दिया, ये शेरुल औलिया। ये कहते हैं कि पहले एक मुद्दत तक, एक जमाने तक, ध्यान से सुनिएगा, एक मुद्दत तक मैं यहाँ से मक्का जाता और मक्का जाने के बाद काबे का तवाफ करता, जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी करता और करके वापस आता। 1 साल किया, 2 साल गया, दूसरे साल गया किया, तीसरे साल गया किया, चौथे साल गया किया, 5वें साल जब हमको तौफीक मिली मैं जाता रहा एक मुद्दत तक और खाने काबा का तवाफ करता रहा। उसके बाद लिखते हैं मगर अब हाय हाय हाय, जरा सा मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह। बोले एक मुद्दत तक मैं उधर जाता और तवाफ करता, मगर अब हालत ये है कि मैं काबे का तवाफ नहीं करता, काबा मेरा तवाफ करता है। अभी नहीं बोलेगा, बोल जरा जोर से सुभान अल्लाह। अब काबा मेरा तवाफ करता, ये देख शेरुल औलिया, और इसकी मजबूती देखनी है तो ये देख फतावा रज़विया, इमाम अहमद रजा हवाला देते हैं इस किताब का। देख इसमें लिखा है, हाय हाय सारे
जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये लिख रहे हैं कि काबा मेरा तवाफ करता है। अब हालत ये हो गई है, एक जमाना आ गया तो सरकार गरीब नवाज का मकाम समझे, कितना ऊंचा मकाम है, कैसे ऊंचे रुतबे हैं। यही किताब शेरुल औलिया है, इसी में लिखा हुआ है। वो पेज या देखिए इधर रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। अब आप हमको बताओ, इससे ज्यादा मजबूत गुफ्तगू और क्या की जाएगी। एक एक लफ्ज पे हवाला नहीं दिया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है, क्या मजबूत बात की जा सकती है। वो भी हवाला ऐसी वैसी किताब का नहीं, वो किताब जिन किताबों को इमाम अहमद रजा ने माना है, आला हजरत ने हवाला दिया है, उन किताबों का पहले मजबूत किया जाता है, तब बात पेश की जाती है। जरा सा देखिए, उसी में लिखा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, मेरे मोहल्ले में एक ठू मेरे शेख उस्मान हारूनी का मुरीद रहता था। हाय हाय, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे मोहल्ले में, पड़ोस में एक ठू मेरे शेख, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर कौन है, पीरो मुर्शिद कौन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने। तो बोले उनका एक मुरीद, यानी इनका पीर भाई हुआ, उनका एक मुरीद बोले हमारे मोहल्ले में रहता था, उसका इंतकाल हो गया। और उसका जब इंतकाल हो गया तो लोग ले गए कब्रिस्तान दफन करने के लिए, नमाज जनाजा पढ़े, कब्र के अंदर रखा। मैं भी गया, सरकार गरीब नवाज कहते, मैं भी गया। मैंने भी नमाज जनाजा पढ़ी और उसके बाद उसको दफन किया, मिट्टी दी। तो मिट्टी देने के बाद सब तो चले आए, मगर मैं रुक गया। मैं थोड़ी देर वहीं रुका रहा। और जब कब्र से थोड़ा सा हट करके, थोड़ा सा दूर हट करके मैं रुका, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये बड़ा गुनहगार था, बड़ा अजीबोगरीब था, गुनहगार है, खताकार था। फरिश्ते आए अजाब देने वाले, और अजाब देना चाहा, इतने में कब्र में उनके पीर शेख उस्मान हारूनी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में कौन आ गया, कस के बोलो, शेख उस्मान हारूनी कब्र में आ गए। मैं कहूं तो कह दो कुछ नहीं, तेरी कोई नहीं मानी जाएगी। ये देख शेरुल औलिया, ये वो किताब है जिसको आला हजरत हवाले में पेश कर रहे हैं। क्या बात है, कह रहे किताब मुस्तताब है। देख इसमें लिखा है, शेख उस्मान हारूनी कब्र में आ गए और बोले इसको अजाब दे रहे हो। बोले हाँ, ये गुनहगार है इसलिए अजाब दे रहे हैं। शेख उस्मान हारूनी ने कहा गुनहगार है तो ठीक है, लेकिन अब इतना तो ख्याल करो मेरा मुरीद है। हाय हाय हाय, जरा सा हाथ उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले वो गुनहगार था ठीक है, मगर मेरा मुरीद है, कुछ तो ख्याल करो। बोले आपका मुरीद था वो ठीक है, लेकिन आपके रास्ते पे क्यों नहीं चला। आपका मुरीद था तो आपके रास्ते पे क्यों नहीं चला, खता क्यों किया। तो शेख, अरे टाइम लग गया मेरे को। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बोले मेरा मुरीद है। फरिश्तों ने कहा आपका मुरीद है तो क्या हुआ, गुनाह क्यों किया इसने, गुनाह क्यों किया इसने। आला हजरत का शेर पढ़ो, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीबा तेरा, है तो करीबा तेरा। बोले मेरा मुरीद है। फरिश्तों ने कहा तो क्या हुआ, गुनाह क्यों किया इसने। वो ये बोले तो इन्होंने कहा ठीक है गुनाह किया, मेरे रास्ते पे नहीं थमा ना, लेकिन अब जुड़ा तो मुझी से था, अपने आप में, अपने दिल में, अपने तौर से
وہ جب بولتا تھا تو میری ہی طرف نسبت کرتا تھا کہ میں انہی کا غلام ہوں، انہی کا غلام ہوں. تو کم سے کم اس نسبت کا تو خیال رکھو. فرشتوں نے کہا ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، حکم مولا کے پابند ہیں. تب تک ادھر سے حکم آ گیا، اللہ کا حکم آیا، اے فرشتوں چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ، میں نے اسے بخش دیا. یہ دیکھ اس میں لکھا ہے، یہ کتاب ہے سیر الاولیاء. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اب اتنی بڑی محفل آپ نے رچائی ہے، خواجہ کی محفل. کسی نے 10 روپیہ دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 100 روپے دیے، بیٹھ کے سن رہے ہو. اپنے آپ کو چشتی غلام کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ خواجہ اجمیری کے غلام کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اللہ کے عزت کی قسم، اگر اس نسبت سے وہ بخشا گیا تھا تو اس نسبت سے تو بھی بخشا جائے گا انشاءاللہ تعالی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے، بزرگوں کی محبت میں اٹھائے. اور پھر اب آپ بتاؤ، ایک سوال یہ ہے کہ قبر میں بندہ پہنچا، فرشتے آتے ہیں، اس کا امتحان ہے، سوال جواب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے. تو وہ تو دوسری دنیا میں پہنچ گیا نا، دوسری دنیا میں پہنچ گیا. وہ پیر صاحب کا کام ہے. پیر صاحب کا کون سا کام ہے بھیا؟ پیر صاحب کا کام دنیا میں تھا نا، یہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دو، یہ اپناؤ، یہ کرو. یہ پیر صاحب کا کام دنیا میں تھا بتانا. قبر میں پیر صاحب کا کیا کام ہے؟ مگر یہ دیکھ کتاب میں لکھا ہے، یہ موجود ہے. یہ کیا بنا رہے ہیں؟ ہو گیا تو ذرا سا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ابھی 20 درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ہو گیا ایک کا کام. ٹھیک ہے، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو سرکار غریب نواز آل رسول اللہ، ان کی نگاہ عنایت اگر اٹھ جائے اور جس پر کرم ہو جائے تو اس کا بیڑا انشاءاللہ پار ہے. دیکھو یہ کتاب جو ابھی ہم نے بتایا سیر الاولیاء، اس میں لکھا ہوا ہے. اب ہم آپ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی پیر صاحب کا کام تو دنیا میں ہوتا ہے، آپ یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اچھا کام ہے اس کو کیجئے. یہ پیر صاحب قبر میں بھی پہنچ گئے، پیر صاحب قبر میں بھی پہنچ گئے کہ یہ میرا مرید ہے. کہاں ہے اس کو عذاب دینے جا رہے ہو؟ تو بولے غلط کیا تھا. جبکہ ذرا سا دیکھیے، تو جب پیر صاحب قبر میں مدد کر سکتے ہیں تو آمینہ کا لال کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور قبر کی منزل و مدد، اس سوال سمجھا ہی نہیں ہے برابر. آپ نے تقریریں تو سنی ہیں لیکن برابر سمجھے نہیں ہو. سنو بتاؤں میں، بخاری دیکھیے، ابن ماجہ دیکھیے، مشکات دیکھیے. بخاری میں تھوڑا سا سوال ایک کیا گیا،
حدیث کی کتابیں دیکھیے, یہی تو علماء نے آپ کو بتایا کہ قبر میں جب جاؤ گے تو نکیرین آئیں گے اور سوال کرتے ہیں من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. اے بھائی جان آپ لوگ بیٹھ جائیے, ذرا سا کرسی لے لیجیے, کرسی لے لیجیے, بیٹھ جائیے. اور چلیے نہیں, جب سے میں بیٹھا ہوں تب سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, تقریر ایسی نہیں ہوتی. اگر 35-40 منٹ ہو گئے تو 1 منٹ بھی شانتی کا ماحول نہیں رہا, چلتے رہے, کوئی آتا رہا کوئی جاتا رہا, ایسا نہیں ہوتا ہے, ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے. تو قبر میں یہی تو سنا ہے آپ نے علماء سے کہ نکیرین آتے ہیں, پوچھتے ہیں من ربوں کا, تمہارا رب کون, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. یہی نا امتحان ہو رہا ہے. تو اب وہ وہاں پیر صاحب کا کیا کام ہے؟ پہلے سب کچھ بتا دیا گیا, من ربوں کا, تمہارا رب کون, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. ابھی ہم نے بتایا نا, سنے تو ہو تقریر مگر برابر سمجھے نہیں ہو. علماء نے کہا سوال ہوگا من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے, جواب کیا دیں گے, یہ بھی عالم نے بتایا کہ جواب دینے والا دے گا ربی اللہ ہو, میرا رب اللہ ہے. پھر سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے, عالم نے یہ بھی بتایا کہ جواب دینے والا دے گا میرا دین اسلام ہے, میرا دین اسلام ہے. سوال یہی تو ہوگا تیرا رب کون, من ربوں کا تیرا رب کون, ما دینوں کا تیرا دین کیا. یہی تو حدیث میں ہے, حدیث میں یہی ہے نا, تیرا دین کیا ہے. یہ 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں. بھیا عربی جاننے والے, لائیو میں سننے والے بھی سن رہے ہوں گے, آپ ہمیں بتائیے, عربی جاننے والے جانتے ہیں. سوال کا انداز دیکھیے, تیرا رب کون, تیرا دین کیا. تو یہ سوال کا انداز جب ایسا ہے پہلے والا, تو تیسرا بھی سوال یہی ہونا چاہیے کہ تیرا نبی کون, تیرا نبی کون. عربی کا طریقہ انداز جو چل رہا ہے, من ربوں کا, ما دینوں کا, تب اسی حساب سے ہونا چاہیے من نبیوں کا. تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرا نبی کون. سوال ایسے ہی ہونا چاہیے نا, یہی انداز چل رہا ہے تو یہی ہونا چاہیے. مگر 2 سوال میں انداز دوسرا ہے اور تیسرے میں انداز دوسرا ہے. ہائے ہائے ہائے, ہاتھ اٹھا. انداز دوسرا کیوں, جو عربی کا نہج تھا اسی پر چلنا چاہیے, جو سوال کا طریقہ تھا اسی پر چلنا چاہیے. 2 میں الگ چلے, تیسرے میں بدل گئے. تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تب آگے ہونا چاہیے تیرا نبی کون. مگر آگے یہ نہیں ہے, آگے یہ ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شخص جن کا نام مصطفیٰ ہے, محمد ہے, ان کو کیا کہتا تھا, ان کو کیا کہتا تھا. ارے یہ پوچھو نا تیرا نبی کون ہے, یہ پوچھو تیرا نبی کون ہے. جیسے پوچھا تیرا رب کون ہے, ایسے پوچھو تیرا نبی کون ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہو, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جن کا نام محمد ہے. تو علماء کہتے ہیں فرشتہ, فرشتہ یہ چاہتا ہے. سوال اس لیے بدل دیا تاکہ یہ کہے, پوچھ سکے, یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یعنی فرشتہ کہتا ہے الگ انداز میں نعت مصطفیٰ پڑھنا, نعت مصطفیٰ پڑھ, نعت مصطفیٰ پڑھ. اعلیٰ حضرت جیسا دیوانہ ہے تو کہہ دے گا جب پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے. جاننا چاہتا ہے میں کیا کہتا تھا, کہاں بول کیا کہتا تھا. اعلیٰ حضرت کہیں گے اللہ کی سرداب قدر
मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, अताए हुजूर शेरे हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, नारे रिसालत। अल्लाह समझ दे। समझिए, सुने तो होंगे, लेकिन सुन के समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। पढ़ के समझना और सुन के समझना, कुल समझना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह समझ अता फरमाए। उलमा ने एक जवाब और भी दिया है कि रब के बारे में पूछते हैं तेरा रब कौन है, इसलिए कि वहां रब का जलवा नहीं दिखाया जाता, मगर आमिना के लाल का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछते हैं, ये देख महबूब सामने खड़ा है, अरे अब भी तो पढ़ दे, सबसे औला वाला हमारा नबी, क्या पढ़ दे, अब पढ़ दे। आशिक कहते हैं अल्लाह करे हम नात पढ़ते रहे, ना सवाल खत्म हो ना हमारा जवाब कायम हो जाए। सुभान अल्लाह, इम्तिहान ही खत्म ना हो, दीदारे मुस्तफा नबी का दीदार होता रहे। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। अब जरा सा देखो, इतनी मजबूत किताब आमिना के लाल के बारे में तो क्लियर करके पूछ लिया जाता है। ये लिख रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ तो उस्माने हारूनी पहुंच गए, शेरुल औलिया। बोले फरिश्तों ने आजाद देना चाहा तो बोले कि काहे आजाद दे रहे हो? बोले आपके रविश में नहीं था। तो बोले नहीं था, लेकिन अपने आप में जब कहता था तो ये कहता था मैं उनका। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उन्हीं का। इतने ने बचा लिया, इतने ने बचा लिया। ए मेरे दोस्त, जहां तक भी सुन रहे हो, अगर इंसाफ की थोड़ी सी रमक तेरे सीने में होगी तो देख और फैसला कर। किताब की इबारत में एक लफ्ज में तू फाल्ट नहीं निकाल सकता है। देख, उस किताब को आला हजरत ने मजबूत कहा है और उस किताब में लिखा हुआ इस तरह से। अल्लाह समझ अता फरमाए और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए, बुजुर्गों से वाबस्ता रहो, उनके साए तले अपनी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे लिए कामयाबी होगी, तुम्हारे लिए कामरानी होगी। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के साए के नीचे जिंदा रखे। ए मुसलमानों, उनसे दूरी, बुजुर्गों से दूर हुए तो तबाही आएगी, परेशानी आएगी। आला हजरत ने कितनी मेहनत की है, किताबें लिखी है, किताबें लिखी है, रद्द किया है लोगों का, आपको जोड़ा है बुजुर्गों से, जोड़ा है बुजुर्गों से आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने। क्यों? इसलिए कि इसमें फायदा है, आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी, आप बचे रहोगे। और यहाँ से जहाँ दूर हुए तो आपके ईमान को खतरा है, तबाहियां हैं, परेशानियां हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। अरे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को हमने ऐसे थोड़ी मान लिया कि जो है बेला वजह मानने लगते हैं हम लोग। पूरी जिंदगी 1000 उलमा एक तरफ कर दो और पूरी जिंदगी का काउंटिंग कर लो उनके, पूरी जिंदगी की कितने साल की जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने तबलीग की। और उसके बाद ये बताओ कि कितने लोगों को उन्होंने दौलत ईमान से माला माल किया। ये सोचिए, आप समझिए, 1000 लोगों को, सबको, हमको, सबको जोड़ लीजिए और पूरी जिंदगी तबलीग करें। कितने लोगों को हमने ईमान, हमारी तबलीग से ईमान नसीब हुआ? 90 लाख काफिरों को जो एक नजर से कलमा पढ़ा दे। जरा सा हाथ उठा, मुस्कुरा के उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल, क्या मुकाबला है यार। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो बड़ी ऐसे थोड़ी मान लिया है, माना है, लेकिन बहुत कुछ देख के तब माना है। अपने आप को अल्लाह की याद में खत्म कर दिया।
दुनिया को भुला दिया। ये क्या है, ये रंगीनी क्या है, ये कपड़ा क्या है, बस अल्लाह ही किया। हजरत जुनैद बगदादी रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी ने रोका। कश्फुल महजूब नाम की किताब, न उसका पेज नहीं लाया हूं, न वो किताब हमारे पास यहाँ है, हमारे कमरे में रखी है। कश्फुल महजूब, कश्फुल महजूब में लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी ने रोक के कहता है कि हुजूर हमें आपसे थोड़ी बात करनी है, थोड़ी देर रुक जाए। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि किससे बात करना है? कहा आपसे बात करना है। कहा आपसे मतलब? कहा अरे जुनैद बगदादी से बात करना है, आप ही से। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मगर मुझसे बात करना है? कहा हाँ। तो कहा मगर मुझसे कैसे बात करोगे? वजह से वो जगह छूट गई, पढ़ाना छोड़ दिया और साल भर तक मुझे जगह नहीं मिल पाई पढ़ाने की। वो कह रहे थे मगर साल भर तक मुझे ये एहसास नहीं हो पाया कि मैं कहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ सरकार मासूम मिल्लत की वजह से। सुभान अल्लाह, उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूं। वो संभालते रहे, समझ रहे हो ना बात को? सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधे घंटे तक मदरसे पे गाड़ी रोक देते और कहते हाफिज अकबर अली को बुलाए लाओ, वो कहीं पढ़ा नहीं रहा है, साथ में लेते चले। जरा सा मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनका शहजादा है जो आपके बीच में मौजूद है। साल भर तक किसी के घर का खर्चा उठाना, कम से कम 8-10 लड़के होंगे हाफिज अकबर अली, साल भर तक खर्चा उठाना, जिम्मेदारी निभाना आसान कम है। तो वो किरदार था उनका कि जाने कितना गरीब इलाके के रो रहे हैं उनके जाने से कि हमारा सहारा चला गया। अल्लाह समझ ले, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। आप अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं इस खानवादे से और सरकार शेरे हिंदुस्तान से, जरा सा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सच्ची मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के बोलो करते हैं ना? मोहब्बत जानते हो किसे कहते हैं? चलो बता दूं मैं। कश्फुल महजूब जो हवाला दिया था मैंने अभी, उसी में लिखा है एक बुजुर्ग बीमार हुए, कश्फुल महजूब। तो लोग उनको लेकर के डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने। उनके मुरीदीन को पता चला, सब हॉस्पिटल घेर ली, आए पहुंचे, हजरत तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है? तो बुजुर्गी की हालत थी। पूछा कौन हो आप लोग? आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? तो बोले हजरत हमको नहीं पहचानते। अरे हम आपके दीवाने हैं, हम आपके आशिक हैं, हम आपके चाहने वाले, आपकी तबीयत पूछने आए। इतना सुना तो बगल में ईंटा पत्थर जो भी पड़ा हुआ था उठा के मारा, और जैसे मारा तैसे सब भागे। जैसे मारना शुरू किया तो सबने भागना शुरू किया। तो इन्होंने कहा ओ झूठी मोहब्बत के दावेदार, तू कह रहा था कि मोहब्बत करते, हलवा मिले तो बड़ा अच्छा और पत्थर मिला तो भागना शुरू कर दिए। अगर शेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत सच्ची है तो हाथ उठा के वादा कर, तूफान आए, आंधियां आए, हवाएं आए, तुझे यही कहना होगा बंदा मिट जाए ना खाओ बंदा क्या है। नहीं तो नजराना मिले तब तो बहुत बढ़िया प्यार करते हैं, और थोड़ा सा एक ठू ईटा उठा के मार दिया ओ भागना शुरू कर दिया। कहते नहीं हलवा खोर मजनू, तो वो नहीं, मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। अल्लाह समझ दे। तो मैं वो क्या
बुजुर्ग की बात बता रहा था ना, एक हवाला ले लो, हजरत की तकरीर होनी है, सिकते भाई की नाम खोल लीजिए, एक हवाला ले लीजिए और वो हवाला शायद यहाँ मौजूद होगा। किताब का नाम है इक्तिबासुल अनवार। क्या नाम है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ऐसे होशियार लोग हो जाए तो परेशानी की बात है। वैसे हमारी टीम बहुत मजबूत है। ये क्या नाम है किताब का? इक्तिबासुल अनवार, उसका पेज है। इसमें जानते हैं क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मुरीदो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीदो खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके मुरीदो खलीफा सुल्तानुल औलिया निजामुद्दीन, सुभान अल्लाह, महबूब इलाही, और उनके खास मुरीद अमीर खुसरू। अब जब इतना बढ़िया आप सुन रहे हो तब एक बात और याद आ गई, वो भी सुनना ही पड़ा। सरकार निजामुद्दीन औलिया का जब विसाल हुआ तो 6 महीना इतना तकलीफ हुई अमीर खुसरू को, बड़े शहीद मुरीद, इतनी तकलीफ हुई, गम में रहे। 6 महीने तक ये बाहयात रहे और 6 महीने के अंदर अंदर ये भी दुनिया से चल गए। जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ, दुनिया से गए शेख अमीर खुसरू का, तो उस वक्त शेख रुकनुद्दीन एक बुजुर्ग दिल्ली में मौजूद थे। शायद ये भी हमारे पास हवाला होगा। ये लड़के देख, सबे सनाबिल शरीफ लेकर के आए, ये हवाला हमारे पास होगा, इनको दिखा दो किताब, सबे सनाबिल शरीफ में ये लिखा है, अमीर खुसरू लिखा होगा शायद। हाँ हाँ, यही ये देखिए, ये क्या नाम है इस किताब का? सबे सनाबिल शरीफ, जिसको मैंने अभी बताया कि आला हजरत कहते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल किताब है। सुभान सुभान अल्लाह। ये क्या लिखा है? 6 महीने तक दुनिया में रहे, 6 महीने के बाद ये इनका भी विसाल हुआ। उस वक्त मखदूम शेख रुकनुद्दीन सहरवर्दी दिल्ली में तशरीफ रखते थे। अमीर शेख रुकनुद्दीन ने अपने साथियों से कहा, इसमें लिखा हुआ है, अपने साथियों से कहा कि अमीर खुसरू का विसाल हो गया, चलो अपने सामने तजहीज़ो तकफीन करवा देते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, इसलिए कि उन्होंने बादशाहों की तारीफ की है, उन्होंने बादशाहों की तारीफ की है, इसलिए चलो अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। शेख रुकनुद्दीन आए, अमीर खुसरू का जनाजा रखा हुआ था। जैसे ही आकर के पहुँचे अमीर खुसरू के जनाजे के पास, तैसे अमीर खुसरू उठ करके बैठ गए और बोले, जाओ तू जाओ, आपके मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट कर हवाले को देख, तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो गलत करके दिखा, दिखा इस हवाले को। ललकार है, ललकार है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबे सनाबिल शरीफ ये बोले, अमीर खुसरू उठ के बैठ गए और बोले, सुनो, मैं अपने पीर महबूब इलाही के नेमतों के साए में हूँ, आपकी दुआ से मग़फ़िरत नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए, ये मकाम है, ये रुतबा है, अल्लाह समझ दे। अरे किसी शायर ने कहा ना कि वो कौन था जहां में जो मुझको खरीदता, कौन था जहां में जो मुझको खरीदता, मैं बिक गया खुलूस से खरीदार देखकर, खुलूस से खरीदार देखकर। और तूर लिया मूसा ने
नजद लिया कैस ने नजद लिया, तूर लिया मूसा ने, मैंने भी थोड़ी सी जगह ली तेरी दीवार के पास। मैंने भी थोड़ी सी जगह ली तेरी दीवार के पास। ये हालत थी, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो ये सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है ये रुतबा। अभी जो मैंने तरतीब बताई, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, उनके मुरीदो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीदो खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। ठीक, अब ये हवाला ले लें आप इक्तिबासुल अनवार का, बस तकरीर खत्म कर दें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास एक आदमी आया, हसन नाम का एक आदमी आया। अब आके कहता है कि हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, मैं आपका खादिम आपकी खिदमत करता था, मेरे पास कुछ नहीं है और लड़की की शादी में बड़ा पैसा लगना है, आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि बच्ची की शादी हो जाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा सेठ के पास जाओ, हम तो फकीर हैं, यहां तुम्हें कहां पैसा दिख रहा है? तो बोले हजरत खिदमत आपकी की, गुलाम आपका, हाथ फैलाऊं किसी और के पास, ये मेरी जमीर गवारा नहीं कर रही है, आप ही को देना होगा। खिदमत आपकी की है तो लेंगे भी आपसे। कहते हैं ना, दरे करीम से मगते को क्या नहीं मिलता, बस मांगने का सलीका चाहिए। बोले हुजूर आप ही दीजिए। अब किसके सामने हाथ फैलाऊं, आपकी रुसवाई नहीं होगी, खिदमत तो उनकी कर रहे थे, मांगने मेरे पास आए हो, देना। तो बोले अरे भाई पैसे का मसला है, यहाँ तो अभी कोई आएगा, जब देगा तो लंगर बनेगा, लोग खाएंगे, या तो सब चंदे से होता है, तो तू यहाँ पैसा मांगने आया, किसी सेठ के पास जाता। तो उसने कहा नहीं जाएंगे, आप ही को देना होगा। तो कहा मेरे पास है कहाँ? तो उसने कहा कि हुजूर आपके पास है क्या नहीं, आपके पास क्या नहीं है? बाबा फरीद ने कहा क्या तुम्हें दिख रहा है? जहां तुम्हें दिख रहा है वहीं जाके ले लो, जाके ले लो। तो कहा हजरत ले तो लेंगे, लेकिन जो मैं कहूं वही आप कह दीजिए, मैं जाके ले लूं। तो कहा क्या कहना? कहा हुजूर वो आपके आंगन में ईंट पड़ी है, आप अपने मुंह से बोल दें कि वो ईंट जाओ उठा लो लेके चले जाओ, बस मैं लेके चला जाऊंगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है, जो हो शौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर है। बोल दो मैं उठा के लेके चला जाऊं। बाबा फरीदुद्दीन ने सर झुका लिया, कुछ देर तक सोचते रहे, फिर सर उठाए, मुस्कुराए, बोले अच्छा जाओ उठा लो लेके चले जाओ, लेकिन जब पकड़ना और उठाना तब रुकना नहीं, चले ही जाना, रुकना नहीं चले जाना। बच्ची की शादी करनी है ना, जा कर ले, मगर रुकना नहीं, उठाना तो लेके चले जाना। ये गया, करीब गया ईंट के, हाथ बढ़ाया और जैसे हाथ से ईंट को पकड़ा, वो ईंट सोने की बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा, उस पार का आलम क्या होगा। ईंट सोने की बन गई, सोने की बन गई। अच्छा जब सोने की बन गई, आप बताओ मकान किसके बनते हैं? इधर ईंटे के ना, हमारे इधर तो ईंट के मकान बनते हैं, इधर भी उसी के। एक ईंट कितने किलो की होती है? 2-2.5 किलो। तो वो आधा किलो छोड़ दीजिए, 2 किलो जोड़ते हैं। अगर 2 किलो जोड़ लें तो वो ईंट 2 किलो की, 2 किलो सोना हो गया कि नहीं हो गया? तो जिसे 2 किलो सोना मिल जाए तो वो अपनी बेटी क्या पूरे इलाके की शादी कर दे, पूरे इलाके की शादी कर दे। ख्वाजा ने कहा बाबा फरीद ने जा अपनी बेटी नहीं पूरे मोहल्ले की बेटियों की शादी कर दे, इतना दे दिया। अब उसके बाद बोले उठा ले, उसने उठाया, ईंट सोने की बन गई और इन्होंने सर झुका लिया, अपनी तस्बीह ली और अपनी तस्बीह में जो इनका रूम था 121 बार 151 बार पढ़ने लगे, अल्लाहू 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 पढ़ते चले जा रहे हैं। आंखें बंद हैं। जब वजीफा मुकम्मल हुआ, आंखें खोली तो क्या देख रहे हैं? हसन कव्वाल ईंट लिए
लड़की की शादी करनी थी, मांग रहा था, दे दिया, कहा था चले जाना, अब क्यों खड़ा है? जाता क्यों नहीं? जा बेच, सामान ले, शादी कर। तो उसने कहा हुजूर चला जाऊंगा, एक काम और है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये कहा नसीब मेरे कि मैं उनके साथ होता, कोई जज्बे मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे काम आ गया है। कहा हुजूर एक काम और है। तो बाबा फरीद ने कहा अब कौन काम है? जे का 2 किलो सोना जिसको मिल जाए तब और कौन काम बाकी है? अब कौन सा काम बाकी है? कहा हुजूर बोलूं? कहा बोल। कहा नाराज तो नहीं होंगे? कहा नाराज, अब नाराज होने वाली बात कहोगे तो हो ही जाएंगे। कहा नहीं, वादा कीजिए नाराज तो नहीं होंगे। कहा अरे बोलो तो, हमको हमारा काम कर ले तो। क्या काम है? कहा गुस्सा ना करें तो एक बात कहूं। कहा अच्छा कह दो कह दो कह दो, क्या कहना है? तो उसने कहा हुजूर वो एक ईंट और पड़ी है, कह दीजिए वो भी उठा लो, तब लेके चला जाऊंगा। हाय हाय, जरा हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ईंट और पड़ी है, कह दीजिए वो भी उठा लो, तब लेके चला जाऊंगा। मेरे भैया, मेरे बाप की बोली नहीं है, ये देख किताब पढ़ने का शौक है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इक्तिबासुल अनवार। बोले हजरत इजाजत, अगर एक बार और कह दे वो ईंट उठा के लेके चला जाऊं। बाबा फरीद ने कहा अब तक जो पहले मांग रहा था वो तो ठीक था, बच्ची की शादी करनी थी, वहां तक सही था, लेकिन अब जो मांग रहा है ये लालच है, लालच है। अब तेरा काम नहीं हुआ, काम से कहीं ज्यादा दे दिया, अब और मांग रहा है। क्या करेगा इतना? अब लालच कर रहा है, अब चला जा, इसी में खैरियत है। कहा हुजूर बस पक्का वादा, एक बार और कह दो, अब की जैसे पकड़ा तुरंत उठा के चला जाऊंगा, आपको पता नहीं लगेगा, आंख खोलेंगे तो मैं गायब। एक बार और बोल दो। बुजुर्ग जो होते हैं ना, जहां जलाल होता है वहीं जमाल भी होता है। तो उसके बाद बोले अच्छा ठीक है जा। जब वो भी उठा ले, लेकिन अब रुकना नहीं, लेके चले ही जाना। मैं तस्बीह पढ़ने जा रहा हूं, तू लेके चले जाना। ये गया, मुस्कुराया, गया और पकड़ा, और जैसे पकड़ा तैसे वो भी ईंट सोने की बन गई। सुभान अल्लाह, वो भी ईंट सोने की बन गई। ले लिया, ये वजीफे में लग गए, अल्लाहू 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 अल्लाहू। आंखें बंद हैं और विर्द जारी है, अल्लाहू 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 अल्लाहू। और जब वजीफा पूरा हुआ, आंखें खोली तो दोनों ईंटें लिए हुए हसन कव्वाल वहीं उसी जगह पे खड़ा हुआ है, वो अभी भी नहीं गया। अब बाबा फरीद को जलाल आ गया, बोले हद कर दिया तूने, अब क्यों नहीं जा रहा है तू? 4 किलो सोना मिल गया, अब जा अपना काम कर, अब क्यों रुका हुआ है? जाता क्यों नहीं? ये कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप से खड़ा हुआ है। तो बाबा फरीद ने कहा कि बने बोलो कुछ, क्या मैटर है, क्यों रुका है? तो उसने कहा हजरत नाराज ना हो, एक बात और कहनी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अब भी नहीं समझेगा। ख्वाजा के मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके मुरीद बाबा फरीद। जब मुरीद के मुरीद का ये आलम है तो हिंदुस्तान के राजा का क्या आलम होगा, उनके मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। जरा सा देखिए, उसने कहा हुजूर बस एक बात और कहनी है। बाबा फरीद ने कहा अब कुछ नहीं सुनना,
चला जा तू, इसी में खैरियत है, वरना जलाल की इज्जत में आ जाएगा। एक बात बताऊं, जो बुजुर्गों के करीब हो जाते हैं ना, वो थोड़ा सा मुहलग्गू हो जाते हैं, चहीता होता है, वो मानते भी वैसे है। उनका बुजुर्गों का हिसाब किताब बड़ा अजीब व गरीब होता है, बहुत मानते। तो वो अच्छा, वो थोड़ा सा जब वो मानते हैं तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, बेतकल्लुफ कह लीजिए या मुहलग्गू हो जाता है। इसने कहा ये बोलते रहे, वो चुपचाप खड़ा रहा। उसको मालूम भी हो जाता है कि क्या करना है, चुपचाप कुछ नहीं बोला। जब डांट करके, कितना डटबो आप, कितना डांटोगे, बोलते बोलते जब ये थोड़ा ठंडे हुए, तब उसने कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बात और कह दीजिए। बाबा फरीद ने कहा कि मैंने अब क्या कहना है भाई, क्या मसला है? तो कहा आप इजाजत तो कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। तो बाबा फरीद ने कहा कि अच्छा ठीक है, बता दे, बता क्या कहना है। तो इसने कहा हुजूर आपके आंगन में ज्यादा अगर 10-15 होती तो मैं नहीं कहता, कुल 3 ईंट ही पड़ी थी तो 2 महीने ले लिया, तो यट्ठू काहे पड़ी रहे वो भी बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोला हजरत 3 पड़ी थी तो 2 महीने ले लिया, तो ये क्यों पड़ी रहे वो भी कह दीजिए, मैं उठा लूं फिर चला जाऊंगा, फिर मैं तुरंत चला जाऊंगा, फिर मैं नहीं रुकूंगा। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा हद कर दिया तूने, हद कर दिया तूने, रे तू इतना कुल क्या करेगा लेकर के। उसने कहा हुजूर करीम को करम से मतलब है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले हजरत, तो बाबा फरीद ने कहा नहीं अब तू चला जा, बस इसी में अच्छा ही है। तो उसने कहा हुजूर मैं चला जाऊंगा, ईंट वही 3 ईंट थी तो 2 महीने ले लिया, अब वो एक बेचारी वही रहेगी, मिट्टी, कम से कम वो भी सोना बन जाए। तो कहा हुजूर मैं चला जाऊंगा, उसे मैं नहीं लूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दो, मैं चला जाता हूँ। बाबा फरीद ने कहा क्या, कौन सा सवाल है? कहा बस इतना बता दीजिए कि वो ईंट सोने की है? कहा नहीं। कहा सोने की बनती कैसे? कहा मेरे बोलने से। कहा जब आपके होठ हिलाने से काम बन जाता है तो आपको कहने में क्या जाता है? सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वाकई से कहीं ज्यादा खुशी तुम्हें तब होनी चाहिए जब मजबूत हवाला तुम्हें दिखाया जाए। ये देख, ये कोई बातों की रंगीनी नहीं है। देख जो लिख रहे हैं वही कह रहा हूं। अब क्या हुआ? बोले हजरत आपको कहने में क्या जाता है, आपके कहने से मेरा काम बन गया, तो आप कह दीजिए ना, एक बार और कह दीजिए। बाबा फरीद ने सर झुकाया, सोचते रहे कि अगर कहेंगे नहीं तो ये जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं, ऐसे कुल करेगा कि अब कह दीजिए तो यहाँ कर दीजिए तो वहाँ कर दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा कह तो दूंगा, लेकिन अब रुकना नहीं तू। तो कहा हजरत अब आपको जाने के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए कि 3 ईंट थी ही, अब है नहीं तो मैं कहूँगा क्या? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हजरत 3 ही थी, 2 महीने ले लिया, एक बाकी है, अब क्या रुकूंगा मैं? बोल दीजिए। बाबा फरीद ने कहा अच्छा ठीक है जा, वो भी ले और लेकर के चला जा। वो भी पकड़ा और जैसे पकड़ा तो ईंट सोने की बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। और जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा? और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।